2009 में 734, 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 550, 2024 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862, 2023 में 670, 2024 में 1368 और अब 2025 में 104, यानी 2009 से लेकर 2025 तक कुल मिलाकर 15,756 अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका से भारत में डिपोर्ट किए गए हैं। मजे की बात यह है कि इससे पहले कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने इस पर एक भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन अब इसको लेकर हंगामा मचा है। सवाल है क्यों? क्या इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है? क्या इसलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस हारने जा रही है? ऐसे में वो राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए कोई मुद्दा ढूंढने का प्रयास कर रही है, या फिर इसलिए क्योंकि विपक्ष आलसी हो गया है और सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो वायरल होता हुआ उन्हें दिखाई दे जाता है उसी पर हंगामा काटने लगते हैं। ये सवाल बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि अवैध प्रवासी जो अमेरिका में कानून का उल्लंघन करके वहां पहुंचे थे, अमेरिका ने उन्हें पकड़कर वापस भेज दिया। इसमें हंगामा क्यों? कांग्रेस की सरकार के समय भी यही होता था, इसी तरह से होता था, आज भी वही हो रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। आप उनका बयान सुनिए। Administration's deportation, I think two or three things are being forgotten by the public. Number one, this is not the first such deportation, won't be the last. Even before Trump came, during the Biden administration, in the last fiscal year, which ended in September 2024, there were already 1,100 Indians sent back from America, illegal Indians. The Americans estimate there are 725,000 undocumented Indians who are eligible for deportation. And in the course of the last 4 years, they have arrested 170,000, almost 2 lakh Indians in their two borders with Canada and Mexico. All these people, they say, are there illegally. If they are citizens of India, we have an obligation to take them back. There is no debate about that. We have to take them back. आपने देखा कि थरूर का कहना है कि ऐसा पहले भी होता रहा है। मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जरूर किया है। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तब अवैध प्रवासियों को स्वीकार करती थी और आज विरोध करती दिखाई दे रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में स्पष्ट तौर पर बताया कि हुआ क्या है। उन्होंने साफ किया कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी होता रहा है और सरकार की नीति में रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है। आप एस जयशंकर का पूरा बयान देखिए। Honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. So, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012, I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir,
We are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. विदेश मंत्री का बयान आपने देखा। अब एक सवाल और है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने कल संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी साथ खड़े दिखाई दिए। यह और बात है कि एक दिन पहले ही संसद में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी पर चुन चुन कर निशाना साध रहे थे। खैर, कांग्रेसी नेता और उनका पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया में लगातार नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है कि यह तो सरकार की नाकामी है, ये कमजोर सरकार है। उनका कहना है कि जो अवैध प्रवासी अमेरिका ने लौटाए हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इसको हमें ठीक से समझना होगा। देखिए, पहली बात यह है कि अमेरिका का कानून तोड़कर आप उनके देश में घुसे थे, उनके लिए आप अपराधी हैं। उन्होंने अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर भेजा है क्योंकि यही उनका नियम है, यही उनकी नीति है, यही उनका कानून है। पहले जो अवैध प्रवासी लाए जाते थे वे भी इसी तरह से लाए जाते थे। ऐसे में इस पर हंगामा करना कि भारत की छवि खराब हो गई, भारत कमजोर पड़ गया, ये सब बोलना तार्किक दिखाई नहीं देता। कोई सेंस है इस बात की? सवाल अगर उठाने ही हैं तो उन लोगों पर उठाने चाहिए जो गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में गए थे। देश का नाम तो उन लोगों ने खराब किया है। कई अवैध प्रवासी ऐसे भी हैं जो लाखों रुपए देकर और कोई तो 1 करोड़ रुपए देकर भी गैर कानूनी तरीकों से वहां गया था। अब आप बताइए, आप 1 करोड़ रुपए देकर गैर कानूनी तरीके से वहां क्यों गए, क्या करने गए थे? इतने रुपए में आप अपने देश में कुछ भी कर सकते थे। याद रखिए, अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले लोग गरीब लोअर मिडिल क्लास वाले नहीं हैं, बल्कि अपर मिडिल क्लास वाले हैं। दरअसल ये सब चकाचौंध के चक्कर में, जल्दी धन कमाने के चक्कर में वहाँ गैर कानूनी तरीकों से जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये वहाँ कई छोटे मोटे काम भी करते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर इन लोगों पर सवाल खड़े होने चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में लोग अवैध तरीके से न जाएं। लेकिन राहुल गांधी इन पर सवाल नहीं उठाते, बल्कि सवाल सरकार पर उठाते हैं। यहाँ एक और गंभीर सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे प्रवासी भारतीयों के लिए खतरा नहीं बने हैं? बिल्कुल बने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सितंबर 2024 में राहुल गांधी अमेरिका के टेक्सास शहर में पहुंचे थे और वहां उन्होंने हरियाणा के ऐसे युवाओं से बात की जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। यह बातचीत हरियाणा चुनाव के समय की गई थी, जिससे कि चुनावों में इसका लाभ उठाया जा सके। अवैध प्रवासियों के साथ इस बातचीत को ऑर्गेनाइज किया था राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु, सिख दंगों को हुआ तो हुआ बताने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने। इस वीडियो को देखते जाइए। इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे हरियाणा के लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसते हैं। सिर्फ हरियाणा के नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के भी। उन्होंने यह भी बताया कि ये लोग अभी भी वहीं घुसे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। क्या इसके बाद अमेरिका की एजेंसियां सतर्क नहीं हुई होंगी? क्या राहुल गांधी का ये वीडियो अमेरिकी एजेंसियों ने नहीं देखा होगा? क्या वीडियो में दिखाई दे रहे चेहरों को अमेरिका के अधिकारियों ने नहीं देखा होगा? निश्चित तौर पर यह वीडियो भी उन्होंने देखा होगा। देश का नेता विपक्ष जब इस तरह का काम करता है तो उसे क्या कहा जाए? एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका में घुसे अवैध प्रवासियों का पता, उनकी जानकारी, सब कुछ दुनिया को बताते हैं। दूसरी तरफ वही राहुल गांधी और वही कांग्रेस पार्टी जब उन अवैध प्रवासियों को अमेरिका डिपोर्ट करता है तब विलाप करते हैं। शायद इसीलिए पीएम मोदी कहते हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अमेरिका से जो अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।